students. Okay. Now, this particular topic, students, gravitation comes under a part of mechanics. ये ध्यान में रखना. Okay. Just hold a moment. Huh? Sir, your mic is off. Yes. Very sorry. Very sorry. Can you hear me, students now? Yes, sir. Very sorry. Okay. Yes. Speaking about gravitation, it's a topic related to mechanics, students. When you're speaking about for gravitation, you're simply going to understand all those physical quantities associated with the pull of the Earth or the pull between any two celestial bodies we consider, or between any two material bodies in the universe. When somebody asks you what exactly the word gravitation we consider is, it is simply we consider a force of attraction between any two material bodies. Any two material bodies in the universe. Friends, when you're speaking about gravitation, we are trying to speak about force of attraction between any two material bodies in the universe. यानी कोई भी bodies है उनके बीच में जो attractive forces होते हैं, that's what we consider as gravitation. It can be any two bodies. अगर मैं बोलूं any two bodies means right now there is a force of attraction between you and an object in front of you. सपोज अगर तुम स्टडी टेबल पे बैठे हो, सामने तुम्हारे पास सामने पेन बॉक्स पड़ा हुआ है, तो दोनों के बीच में तुम्हारे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है between you and the point box. You being a heavier mass, pen box being a smaller mass. लेकिन why not you all are getting attracted? Why not you all are not getting attracted? Can anybody tell me that? Gravitational force. Yes, because there is a gravity acting on you. What is acting? Gravity. That is the pull of the earth acting. यानी A और बीच के बीच में there is a force. ये जो force है ये है gravitational force. ये है force of gravitation we consider. लेकिन A के ऊपर भी तो gravity force आ रहा है और ये भी तो force of gravity है.
यानी ये जो ग्रेविटी फोर्स है ये बॉडी को मोशन में नहीं ला रहा है। अगर सपोज ये दोनों ऑब्जेक्ट को तुम आउटर स्पेस में भेज देते हो, इफ इन केस इफ आई मेक देम टू गो इनटू आउटर स्पेस, व्हाट्स गोइंग टू हैपन? Then certainly A and B both will tend to move towards each other. Then there will be certainly a force of attraction between the two bodies we consider. So students, when you go for gravitation, simply we consider it's a force of attraction. It's purely a force of attraction between any two material bodies in the universe. लेकिन ये जो bodies है, we consider to be as what? We can consider them to be point mass. Students, can you tell me what exactly point mass means? What exactly point mass means? Anybody? Yes, any of the students? Point mass. Harsh, Syed, Bhargav, Ankit, Deep, Rishabh. The mass is 1 gram. Mass is 1 gram. That's what point mass. Anybody else? Point mass system का मतलब क्या है? क्योंकि ये जो gravitational force है ना students, ये कहाँ पे act होना चाहिए? अगर तुमने पूरा body लिया students, ध्यान से सुनना, that's why I asked you, did you have to do rotational? Yes, you have done rotational. तो अगर suppose मैंने Center of- कोई, yes, who's this who said it right now? Sir, Harsh. Harsh, you said it, ना? Okay. Yes. वो हर्ष ने जो बोला वो सही है। अगर सपोज मैंने पूरा बॉडी ले लिया जिसका मास इफ आई हैव टू कंसीडर इज टू बी कैपिटल एम, तो ये है क्या सर? देयर आर लॉट्स ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स इनसाइड इट, तो उनका जो टोटल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर वी कंसीडर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ मास। यानी अगर पूरे बॉडी का मास हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं एट अ पॉइंट, if the entire mass of the body is supposed to be concentrated at a point, I call that to be as a point mass. I'll call as a point mass. I mean, a simple example I'll consider. Please try to understand this part of it. Again, a simple example, if I happen to consider, then if I ask you students, मुझे ये बताओ students, what is a center of mass and center of gravity? दोनों में difference क्या है? क्या दोनों एक है या both of them are different from each other? Center of mass and center of gravity, students. Are different. How do you say different? Tell me. Norman, how do you say different? What is center of mass? What is center of gravity according to you? Yes, anybody? Norman, you said something. They are different. How can you differ? Yeah, bolo. Sir, center of mass focus on mass and center of gravity focus on weight. Focus on mass and focus on weight we consider. Yes. Okay, absolutely correct. But can both these particular be one and the same? Can center of mass can be equal to center of gravity? No, sir. Why not? Sir, cause the center of mass is the point at which the distribution of mass is equal in all directions. And in the gravity, it depends on the gravitational field. Distribution of mass is supposed to be concentrated at one point. अगर मैं center of mass बोलूं तो पूरा mass का distribution is at a common point. तो वो center of mass हुआ। अगर वहां पे मैंने pull of the earth दे दिया तो हो जाएगा force। तो वो force act हो रहा है at that particular point. So that is force of gravity acting at that particular point. तो उस point को then you can call center of gravity. लेकिन क्या ये दोनों एक हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? किसके लिए? Point mass system के लिए। एक simple example I'm trying to go for it. Listen carefully. Suppose अगर मैंने huge earth दे दिया, ये earth का मैंने capital M दे दिया, okay? Suppose अगर मैंने earth का mass दे दिया 6 into 10 raised to the power of 24 kilograms, okay? Now when I consider this earth, radius of the earth मैंने दे दिया तो मैं 6,400 kilometer. Students, radius of the earth 6,400 kilometer, 6,400 kilometer. Now suppose इसी earth के ऊपर if I try to construct a huge pillar, एक मैंने pillar construct किया जिसका height is equal to 6,400 kilometers. तो forget about the earth. For the time being, earth को भूल जाओ, सिर्फ pillar को देखो. Students, can you tell me where exactly center of mass of this particular pillar? You will say, sir, geometrical center. क्या ये सही है? Agreed? Yes. Where is Yes, the center? sir. Where is the center of gravity for this particular pillar? So at the bottom of the pillar. At the Bottom of the pillar. bottom of the pillar. Why?
ये कभी कभी हाउ व्हाट मेड यू टू कंक्लूड दैट कि बॉटम ऑफ द पिलर जाएगा? क्योंकि तुमने पिलर को अर्थ के कंपैरिजन में ले लिया। पिलर का हाइट अगर 6400 है, रेडियस अगर तुमने 6400 ऑफ द अर्थ है, दैट्स अ ह्यूज मास। तो center of mass of that particular body we consider as well, but center of gravity always tries to shift towards a heavier mass. Of course तुम्हारा CG लोअर हो जाएगा। एक सिंपल इलस्ट्रेशन, चलो मैंने और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने तुम्हें 2 कोन्स दिए स्टूडेंट्स, 2 कोन्स। ये तो शायद तुमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। 2 कोन दिए मैंने, दोनों का बेस एरिया सेम है, दोनों का हाइट भी सेम है। स्टूडेंट्स दोनों का बेस एरिया सेम, दोनों का हाइट भी सेम है। One is considered to be a hollow cone and one is considered to be a solid cone. Students tell me where is the center of gravity? Center of gravity hollow cone का कहाँ पे होगा, solid cone का कहाँ पे होगा? Same base, same height. सर सेम ही होगा ना, मिडिल में ही। No. जिसका बेस हैवी होगा, जहां पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ज्यादा होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पे लोअर होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा। हॉलो के लिए स्टूडेंट्स, अगर ये हाइट h है कोन का, तो फ्रॉम द बेस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो इज h/3। ध्यान से सुना स्टूडेंट्स, हॉलो कोन के लिए अगर हाइट ऑफ द कोन इज h, then the center of gravity for a hollow cone is at a height of h/3 from the base. But now if I happen to go for a solid cone, students, for a solid cone for a height h, where is the center of gravity? At a height of h/4 from the base. कंपेयर दोनों को देखो, अगर तुम कंपेयर करोगे 1/3 यानी कितना होगा? 0.33 times h। ये कितना होगा? 0.25 h। Agreed? So can I say it is lowered and this is raised? Yes, sir. So दोनों का CG अलग है, दोनों का CG अलग है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास पूछा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास पूछा, तो सेंटर ऑफ मास विल बी कंसीडर्ड एज अ ज्योमेट्रिकल सेंटर। आई कैन कंसीडर फॉर एग्जांपल अगर मैंने ना तो सुना, अगर मैंने थिन यूनिफॉर्म वायर लिया, थिन यूनिफॉर्म वायर लेंथ L लिया, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? तो बोलोगे सर L/2 पे। एवरीबॉडी एग्री विद दिस? यस सर। Yes. लेकिन इसी को अगर मैंने रिंग में बना दिया, बताओ उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? Center of the यानी it can lie in a hollow space. So center of mass is simply be considered as a geometrical center, but center of gravity will always shift towards a heavier mass. एक simple example students you all must have come across. I don't know about it, अगर तुमने Formula 1 races cars की तुमने देखोगे, कार रेस देखी होंगे, Formula 1 race cars. Okay, तो अगर Formula 1 race cars अगर तुमने देखोगे, तो race cars की जो टायर्स होते हैं इतने broad होते हैं, and have you seen the driver, the pilot who is driving that particular car? You will see that the person is inside and the car is so flat. यानी जो बंदा अंदर बैठता है hardly is 15 centimeter away from the ground. यानी कितना CG को लोअर किया है। जितना स्टूडेंट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी को लोअर करोगे, उतना तुम्हारा कांटेक्ट बढ़ेगा, उतना तुम्हारा फ्रिक्शन उस बॉडी को होल्ड करके रखेगा। A simple example again I'm trying to put forward. Take 2 Indian cars. हमारी 2 इंडियन कार पकड़ लो। एक आप पकड़ लो वैगनार और एक आप पकड़ लो स्विफ्ट। Have you seen a Swift? स्विफ्ट का गाड़ी अगर देखोगे, Yes, sir. नॉट बेसिकली वैगनर अगर होती है तो स्टूडेंट्स कॉल देम व्हाट? मैच बॉक्स। दिया सली का खोखा, दे से लाइक दैट, इट्स अ मैच बॉक्स। अगर तुम वैगनर को देखो तो उसकी हाइट देखो कितनी रेस्ड है। अगर सपोज दोनों गाड़ियों को तुमने घुमाया, ये शायद सर्कुलर मोशन में भी तुमने पढ़ा है, दोनों गाड़ियों को अगर तुमने घुमाया और सर्कुलर मोशन के लिए अंदर भेजा, किसका टॉपलिंग होना इफेक्टिव होगा? Which car will topple much more? Will be Wagner or will it be Swift? कौन सी कार ज्यादा टॉपल होगी? Sir, Wagner. क्योंकि अगर तुम देखोगे वैगनर का क्या होगा सर, वैगनर के अंदर तुम्हारा CG will be raised, लेकिन वही अगर तुमने स्विफ्ट देखा, if you consider they have a broader base, in this case they have a broader base, in this case CG is lowered. If I consider this is the ground, if I take it, this is the ground, I'll consider CG is lowered, यहाँ पे CG is raised. So over here with you trying to speak about, my question was, does CM and CG can it be concurrent? तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए yes sir, it can be concurrent. लेकिन concurrent किसके लिए होगा मालूम है स्टूडेंट्स? Only for point mass object. Point mass object का मतलब क्या? Where the entire mass of the body is supposed to be concentrated. क्या ये पिलर
क्या ये पिलर मैं अर्थ के कंपैरिजन में पॉइंट मास बता सकता हूँ? नहीं सर, नहीं बता सकते हो। क्यों? क्योंकि सर आपने इसको 6400 किलोमीटर ऊपर लंबा खींच लिया। अगर मैं माउंट एवरेस्ट को भी देखूं तो वो भी तो इन कंपैरिजन में इट्स अ ह्यूज ऑब्जेक्ट। तो जो ह्यूज ऑब्जेक्ट्स है उनका सीजी और सीएम कॉन्करेंट नहीं होगा। लेकिन अदर देन all those objects, you go for a tall building, yourself, myself, all of you are onto the planet Earth. यानी अगर मैं अपने आप को भी देखूं तो with respect to Earth, I'm a point mass. Students, I'm a point mass in comparison to the Earth. Earth is huge. तो यहाँ पे मेरा CG और CM will be concurrent. तो what I was trying to say that जब भी ये gravitation के बारे में पढ़ते हो तो gravity के लिए हमेशा students force of attraction होता है। लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसी के बीच में होगा? किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा। कहाँ पे? इन द यूनिवर्स। लेकिन ये फोर्स लगता कहाँ पे? इट्स एक्चुअली ऑन टू द पॉइंट मास ऑब्जेक्ट्स वी कंसीडर। दैट मींस व्हाट इज पॉइंट मास? वेयर द एंटायर मास ऑफ अ बॉडी सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड। सीएम क्या मतलब क्या? सेंटर ऑफ मास व्हिच एक्चुअली रिवील्स द मास ऑफ द बॉडी। एंटायर मास इज द अलजेब्रिक सम। जाके शायद तुम लोगों ने देखा होगा सेंटर ऑफ मास को तुम देख सकते हो इज अलजेब्रिक सम ऑफ dm we consider. Okay, I we consider when I equal to the first particle or I equal to n particle, या integration of dm we can consider which is equal to capital M. ये किसके लिए होगा? algebraic sum किसके लिए होगा स्टूडेंट्स? और इंटीग्रेशन कभी होगा? Continuous mass algebraic sum system. for system of particles और वो continuous mass distribution. हाँ वेरी गुड। यानी ये जब भी तुम्हारा मास डिस्क्रीट मैनर में होगा। अगर ये मास डिस्क्रीट मैनर में है तो algebraic sum आएगा। ठीक है, अगर मास कंटिन्यूअस मैनर में है तो इंटीग्रेशन ऑफ dm आएगा। that becomes your capital M. The center of mass speaks about the entire mass of the body. Center of gravity is where the force of gravity act onto that mass. Where the force of gravity acting onto that mass we consider. एक simple concept I'm trying to go for it. अगर suppose मैंने तुम्हें एक thin uniform rod दे दिया, thin है, length L है, uniform rod दे दिया, तो उसका center of mass और center of gravity एक ही point होगा और उसका weight वहां पे act होगा vertical downwards. कैसे पता चलेगा? अगर suppose मैंने यहाँ पे फलक्रम बिठा दिया, यहाँ पे एक फलक्रम बिठा दिया, सीसॉ जैसा होगा, तो क्या होगा? वो टर्निंग इफेक्ट करेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस मैंने इसी रॉड को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा मास दे दिया और फिर पीछे जाते हुए मास पतला होते जा रहा है, द मास गोज ऑन डिक्रीजिंग, तो इज इट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? नहीं सर, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? सर आपने बोला था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास, तो मेरा सीजी राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा? मेरा फलक्रम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होगा, so that the entire mass can be arranged and the rod can be in equilibrium. अगर सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, अगर ये फलक्रम को मैं यहाँ पे लूंगा तो ये मास तो हैवियर है, ये कौन से डायरेक्शन में चला जाएगा? सर ये तो एंटी क्लॉकवाइज में चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस तरफ ले रहा हूँ तो क्लॉकवाइज में जाएगा, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम व्हाट हैपेंस? वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है। तो फ्रॉम हियर स्टूडेंट्स शुड कंक्लूड कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज ट्राइज टू शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास। And we are trying to understand this force of attraction. The force of attraction between any two material bodies in the universe is called as simply gravitational force. Is this clear with all of you students? Yes. yes sir. Yes, sir. क्या मैं इसको erase कर सकता हूँ? 1 minute. Erase करो students. No sir.
Girish, करो students अभी? Yes. Okay. Sir, yes, sir. Sir, when you're writing, then only you have to write. Or नो नो यार, अगर तुम देखो, तुम्हें अगर हैबिचुएट हो लिखने के टाइम पे, लेकिन साथ में समझना भी जरूरी है, तो तुम समझ while making you understand if you're writing it, I have no problems, लेकिन you should connect to you. If you tell me after that also to hold for 2 or 3 minutes, it's fine enough with it. I have no problem with that also. Okay, or you can take a screenshot also, that is your wish, what exactly it is, but according to me, written is remembered. तुम्हें उस टाइम पे लिखना है, बाद में लिखना है, तुम्हारी मर्जी होनी चाहिए, लेकिन things which are told should not be forgotten. The purpose is only that. Are you getting it? So जरूरी नहीं, it's not a hard and fast rule students कि तुम्हें लिखना ही है, तुम्हारी मर्जी. वो बोलते हैं ना, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी. It should be like that. Okay. At the end of it, तुम्हें, you know, I'm able to get it and I can solve it. That is it. तो यहाँ पे तुम्हारा मेन पॉइंट तुम्हारा था क्या था? यहाँ पे मेन पॉइंट ये बताया गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या है? इट्स अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू मटेरियल बॉडीज. वो है ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर मैंने पूछा ग्रेविटी का मतलब क्या है, तो तुम्हें बोलना चाहिए ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ. ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. इफ समबडी आस्क यू, आंसर देना, लुक एट इट. इफ समबडी आस्क यू स्टूडेंट्स, व्हाट इज योर वेट, what is your normal reaction force, what is the pull of the earth acting onto you, or what is the gravity acting onto you? यानी चारों को इसमें मैंने क्वेश्चन एक ही पूछा. मैंने पूछा व्हाट इज योर m into g. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. yes. Again I repeat, मैंने बोला what is your weight, what is the normal reaction force acting onto you, what is the pull of the earth acting onto you, और लास्ट मैंने पूछा what is the gravity acting onto you. या मैं पूछूं what is the gravitational force exerted by the earth onto you, तो मैंने सिंपली तुम्हें क्या पूछा, m into g पूछा है. तो ये ध्यान में रखना स्टूडेंट्स. तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन एनी टू मटेरियल बॉडीज. और अगर मैं सिर्फ ग्रेविटी वर्ड यूज करूं, or gravitational force of the earth, if I'm using it, then simply I can call that as the weight of the earth. And that's m into g. Friends, can you tell me what exactly the weight? Just hold a minute, students. Just hold. What is the unit of weight, students? If in case if I ask you gravity or the gravitational force acting on you, what is the unit of weight? Can anybody tell me? Newton. No, my dear. It's kilogram force or gram force. Newton कभी मत बोलना students. See, normally when you raise a question to somebody, तुम पूछते what is your weight, तो सामने वाला weight नहीं बताता है, वो वहां से बताता है. तुमने पूछा किसी को भाई तेरा weight क्या है, लेकिन सामने वाला बोलता 70 किलोग्राम, तो तुरंत वो बोला कि भाई तू तो मास बताया मुझे, किलोग्राम नहीं पूछा, मैंने weight पूछा, pull of the earth पूछा.
फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन यू पूछा, ग्रेविटी पूछा मैंने, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पूछा, तो वो हमेशा स्टूडेंट्स किलोग्राम फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में होगा. 1 किलोग्राम फोर्स is equal to 9.8 Newton. 1 gram force is 980 Dalton. ये हमेशा ध्यान रखना स्टूडेंट्स. 1 kilogram force is 9.8 Newton. 1 gram force is equal to 980 Dalton. And this weight is equal to m into gv consider. यानी हमेशा जब भी weight express करोगे ना तो किलोग्राम फोर्स and gram force में. Students, can anybody tell me what is 1 gram force? क्या तुम define कर सकते हो 1 gram force? Can you define 1 gram force? Anybody? Yes, anyone? Sir, Yes. the amount of due to applied by 1 gram due to the presence of gravitational force. Absolutely correct. लेकिन when it falls down, okay, with what acceleration is going to come up? Will fall down? With what acceleration? 9.8 meters. No, my dear, it's a gram force मैंने पूछा है. Gram force पूछा मैंने. 980. Hmm. 980. Absolutely correct. 980 gram per centimeter cube. Yes. Okay, absolutely correct. और वही अगर मैंने 1 किलोग्राम फोर्स पूछा तो क्या बोलोगे? 9.8 meter per second. Yes. Any students try to understand these things. यानी अगर suppose मैंने कोई body दिया है और जिसका mass मैंने दिया है 1 किलोग्राम students. So if I release that body, it's going to come down onto the earth with an acceleration of 9.8. So a body, listen carefully, a body when made to fall freely under the influence of gravitational force of the earth. If it comes down with an acceleration of 9.8 meter per second square, then the force exerted on this 1 kilogram will be 1 kilogram force. Students, force of gravitation is equal to mass into g. Mass कितना है? What is the gravitational acceleration मैंने बोला? दोनों को मल्टीप्लाई करो. क्या यूनिट आ रहा है? What is kilogram meter per second square is? Newton. Is this clear? 1 kilogram force? Yes, sir. Okay. Where's the 1 gram force we consider? Now, when we speak about for gravity or the weight we consider is the force exerted we consider is always in kilogram force and gram force. This force act between the line joining the center of the two masses we consider. Please students, ये ध्यान रखना जब भी हम gravitation force की बात करते हैं ना students, तो कोई भी दो material bodies होंगे तो always we try to go for the line joining their center of mass. Suppose if I consider this is the first body, the second body, तो ये center of mass है. Center of mass of the first body, center of mass. यानी जो भी distance आप देखोगे ना will be always from the center of mass of one with respect to another. That's gravitational force we consider. And we take it the force between two material bodies we consider. If it's with respect to Earth and the object, the object if I have to consider, this is the object and this is the Earth. ये जो line है, I consider this as your small r I consider. So r we consider is the distance between the object and the body we consider, and this is the force of attraction between the two bodies we take. Now, when I move further with respect to gravitational force, we have the first important law we consider is Newton's law of gravitation, students. Can anybody state Newton's law of gravitation? क्या तुम बता सकते हो Newton's law of gravitation, students? Sir, Hmm. sir, if two masses are kept at a distance d from each other, Hmm. then the force of gravitation force between them is directly proportional to product of their masses upon distance square. Absolutely correct. Students, ये जो force है ना, ये force को अगर तुम देखोगे ना simple तरीके से अगर देखोगे force को, तो force का जो classification है, शायद तुम लोगों ने 11th standard में laws of motion में पढ़ा होगा. तो ये दो type के हैं students. एक होता है real force और एक होता है pseudo force. एक होता है real PSE pseudo force
रियल फोर्सेस कौन से होते हैं स्टूडेंट्स मालूम है? जहां पे तुम्हें सोर्स होने की जरूरत है और ओरिजिन भी है, यानी जहां पे तुम्हें सोर्स और ओरिजिन होगा वो रियल होगा। जहां पे सोर्स नहीं है, जहां पे ओरिजिन भी नहीं है फोर्स का, वो सारे इमेजिनरी फोर्सेस होंगे। तभी जाके स्टूडेंट्स जब भी तुम सर्कुलर मोशन पढ़ते हो तो वहां पे तुमने देखा होगा कि अगर गाड़ी लेफ्ट में जा रही है तो बंदा जो अंदर बैठा हुआ राइट में जाएगा। सिंपल एग्जांपल, कार के अंदर अगर बलून है और बंदा कार इज गोइंग टू द लेफ्ट, बलून विल गो टू द राइट, वी कंसीडर। या सपोज कार आगे की तरफ जा रही है एंड सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, आई गेटिंग इट, द कार कम्स टू रेस्ट बट द पर्सन मूव्स फॉरवर्ड। तो ये सारे कौन से फोर्सेस है? सीडो फोर्स न्यूटन भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, इसलिए उनको इमेजिनरी फोर्सेस दे दिए। वैसे यहाँ पे रियल फोर्सेस जिसके सोर्स और ओरिजिन है। अभी एग्जाम्पल, इफ आई कंसिडर ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ रियल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे वापस तुम्हारे बाइफिकेशन होता है। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स स्टूडेंट्स, एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव। Friends, when I speak about conservative forces, what exactly conservative forces are? Conservative forces where we consider energies conserved. Example of conservative forces. Can anybody give me examples of conservative forces, students? Can anybody give me examples of conservative force? Spring force, gravitational force, No, my dear. electrostatic force of attraction. Only gravitational force, only electrostatic force, and magnetic force. Which force you said? It's spring force. Yes, sir, spring force. That comes under non-conservative. Spring के अंदर तो elasticity होगा, elasticity होगा, तो उसकी वजह से और वो कांटेक्ट फोर्स होगा। जब भी तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो तुम्हें कांटेक्ट में तो आना पड़ेगा ना स्प्रिंग को कंप्रेस करने के लिए। या स्प्रिंग को अगर तुम एक्सटेंड भी करोगे तो यू हैव टू सस्पेंड द लोड, तो वो लोड तो कांटेक्ट में आया कि नहीं है? यहाँ पे बिना कांटेक्ट फोर्स एक्ट हो रहा है। और स्टूडेंट्स, अगर मैं ये पेन को अगर मैं ड्रॉप कर दूं तो भाई नीचे क्यों जा रही है? अर्थ के साथ में तो कांटेक्ट है ही नहीं, तो एक फोर्स है ना जो इमेजिनरी है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और ये किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? ग्रेविटेशनल फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। ये कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड। स्टूडेंट्स, ये फील्ड्स की वजह से ये कंजर्वेटिव फोर्सेस है। तो ये जितने भी तीन फोर्सेस है स्टूडेंट्स इन नेचर, ध्यान से सुनना, ओनली दीस थ्री फोर्सेस आर कंसिडर्ड टू बी कंजर्वेटिव। बाकी जो तुम फोर्स बोलते हो ना नॉन कंजर्वेटिव में, तुम्हारे आते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फोर्स ड्यू टू कोलिजन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, टेंशन भी कंसिडर, इवन न्यूक्लियर फोर्स भी यहाँ पे आता है, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज आल्सो कांटेक्ट, वेदर वीक और स्ट्रांग वी कंसीडर फिशन और फ्यूजन के हिसाब से, तो वो भी सारे कांटेक्ट फोर्सेस है। हम कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो ग्रेविटेशन है कौन सा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ पे दो बॉडीज को कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं है, फिर भी बॉडी ड्रॉप होगा। देयर इज यानी इनके बीच में डिस्टेंस है, लेकिन फर्क क्या है तीनों में? फर्क क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स आर प्योरली अट्रैक्टिव, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होगा। तो मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी होगा, रिपल्सिव भी होगा। ये ध्यान में रखना, ये भी तुम्हारा अट्रैक्टिव और रिपल्सिव होगा, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स प्योरली अट्रैक्टिव होगा। दूसरी बात, डज ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड्स ऑन टू द इंटरवेनिंग मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज? नो, इट्स इंडिपेंडेंट। अरे अभी तो मैंने बताया दो फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट्स हो, तुमने सेलेस्टियल बॉडीज को ले लिया, वहां पे भी पुल है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है। अभी भी मैं बोला तुम्हारे घर के तुम बैठे हो, तुम्हारे सामने पेन बॉक्स है, दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस है। So it's independent of the intervening material medium between the two bodies. ये प्योरली अट्रैक्टिव रहेगा। हाँ, लेकिन तीनों फोर्स इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। All three obey inverse square law, students. Inverse square law का मतलब, anybody can tell me what is inverse square law? All three obey inverse square law. What does that mean? Gravitational force, electrostatic force, magnetic force, all three obey inverse square law. Can anybody tell me what exactly it means? क्या कोई बता सकता है? Okay. Yes, anybody?
Inverse to distance maybe. Absolutely correct. Who's this? Who's this? Who's giving an answer? Norman. Norman is a wise and smart one. ना एकदम धीरे धीरे आंसर देता है वो, लेकिन he hits the target proper. See inverse square law यानी उसने क्या बोला मालूम है students? Inversely proportional square of the distance. यानी स्टूडेंट्स दो मासेस के बीच में जो डिस्टेंस है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तुम्हारा क्या मालूम है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस between the line joining the center of the two masses. यही ध्यान में रखना. If I'm going for electrostatic force, ये एक चार्ज है पॉजिटिव, ये एक चार्ज पॉजिटिव है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. But that also depends on to what, students? Distance between the two charges. Force of repulsion, force of attraction depends on the distance between point electric charges. Point electric charges का मतलब क्या? अगर मैंने पूरा बॉडी ले लिया है, चार्ज पूरा इंड्यूस कर दिया सरफेस पे, the entire charge can be concentrated at the geometrical center. क्यों नहीं? तो ये क्या होगा? पॉइंट चार्ज सिस्टम हो गया. ये क्या है? पॉइंट मास सिस्टम. क्या मैं इस पूरे बॉडी का मास में कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ एक पॉइंट पे? व्हाई नॉट? ये हुआ मेरा पॉइंट मास. अगर सपोज वही मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, ध्यान से सुना, अगर मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं ऑब्जर्वर इन दोनों मासेस से बहुत दूर खड़ा हूँ, तो मेरे लिए तो दोनों पॉइंट मास हो जाएंगे. For example, if I'm standing on a road and if I see two cars at a very far distance, for me those two cars appears to be a point. लेकिन वही ऑब्जेक्ट जब नजदीक आ जाते हैं, they becomes huge mass. तो यहाँ पे हम इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब क्या है? The gravitational force, electrostatic force और magnetic force सारे क्या है? Inversely proportional to the square of the distance. यहाँ पे होगा between the line joining, students ध्यान से सुनना, between the line joining the center of the two masses. Students problems यहाँ पे गलत क्यों करते हैं? क्योंकि ये वो ध्यान में नहीं रहता है. It's center of mass है. जानबूझ के वो सरफेस का डिस्टेंस देते हैं और इसका रेडियस दे देंगे, तो तुम्हें सेंटर से लेना स्टूडेंट्स. Again, electrostatic force of attraction and repulsion inversely proportional to square of the distance. Magnetic force of attraction and repulsion inversely proportional to square of the distance. So students, when you classify force into two categories, real and zero forces. Real force क्या होता है? जिसको origin होगा, जिसको source होगा. For example, अगर मैं बोला gravitational force is acting on to me. तो what is the source? Earth. Origin कहाँ से हो रहा है? Origin कहाँ से हो रहा है? That is the force is carrying. अगर मैं अपने आप को देखूं, तो force का जो vector है, gravitational force का जो vector part है, vector का मतलब क्या हुआ? एक tail और head होना चाहिए. तो टेल कहाँ से शुरू हो रहा है? तो तुम बोलोगे सर आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जो मेरा नेवल पॉइंट, वहां से शुरू हो रहा है. एंड वेयर इज दिस फोर्स डायरेक्टेड? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. यानी ये जो एरो है वो कहाँ पे जाएगा? सेंटर ऑफ द अर्थ जाएगा. तो यू नो दैट द वेक्टर पार्ट ऑफ इट, टेल का मतलब क्या? जहां से शुरू होता है. एरो हेड का मतलब जहां पे वो टर्मिनेट होता है. तो ये जो फोर्सेस उनको सोर्स और ओरिजिन होता है. सीडो फोर्स को तो होते ही नहीं है. तभी जाके तुम्हारे टीचर ने जब सर्कुलर मोशन बोला होगा, तो सर्कुलर मोशन के अंदर रियल फोर्सेस एक्ट होते हैं. फ्रिक्शन, कॉज फॉर सर्कुलर मोशन वी कंसीडर. यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. हम अगर गाड़ी राइट में जा रही है, बंदा लेफ्ट में जा रहा है, न्यूटन को पूछा गया, भाई गाड़ी राइट में जा रही है, टर्न होकर राइट में जा रही है, लेकिन बंदा लेफ्ट में क्यों जा रहा है? न्यूटन भी आंसर नहीं दे सका था, तभी जाके उसको सीडो फोर्स डाल दिया. क्यों? क्योंकि न्यूटन नहीं बता सका कि उसका सोर्स क्या है, उसका ओरिजिन क्या है. ही कुड नॉट गिव एन आंसर फॉर इट. और वो ही लेगेसी चलती आ रही है. दैट इज व्हाई वी से दीस आर सीडो फोर्सेस. सो कुछ एक्सप्लेनेशन सीडो फोर्सेस यानी जहां पे न्यूटन्स लॉस को ओबे नहीं करते, वो सीडो फोर्सेस है. जो न्यूटन्स लॉ को ओबे करते हैं वो रियल फोर्सेस है. उसमें होते हैं कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव. नॉन कंजर्वेटिव के अंदर एनर्जी डेसिपेट हो जाती है, जैसे कि स्प्रिंग फोर्स बोल दिया. अगर मैंने कोई वायर लिया, सिंपल एग्जांपल, तुम इसको बोलो ना, वायर इलास्टिसिटी क्या है? वायर को अगर सपोज मैं एक्सटेंड करूं, वायर को मैंने लोड कर दिया है और वायर को मैं एक्सटेंड करूं ड्यू टू लोड, क्या होगा? इज वर्क डन? हाँ सर, वर्क इज डन. वर्क इज डन अगेंस्ट हाफ इनटू स्ट्रेचिंग फोर्स इनटू एलोंगेशन. ये तुमने फॉर्मूला डिराइव किया इंटीग्रेशन से. ये तुम्हारा क्या होगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. लेकिन स्टूडेंट्स, जब भी ये वायर एलोंगेट होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है. अगर मैंने ये वायर को अनलोड किया, वायर को अनलोड किया, वायर को अनलोड किया, वायर को अनलोड किया, वो वायर अपने जगह पे आता है, तो भाई तभी एनर्जी कहाँ पे चली गई? वायर जब भी एक्सटेंड हुआ तो देयर वाज सम वर्क डन.
against the restoring force, क्योंकि atoms and molecules will try to restore their position, लेकिन wire तो elongate हुआ है. That means there is some work done in elongation. जो भी काम हुआ, that is got stored in the body in the form of which energy? Elastic potential energy. लेकिन जब भी तुम लोग ने अनलोड कर दिया तो वो एनर्जी कहाँ पे चली गई? एनर्जी डेसिपेट हो गई. तभी जाके उसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं. इन फॉर्म ऑफ व्हाट? हीट. तभी जाके टेम्परेचर बढ़ता है. स्टूडेंट्स, शायद तुम लोग ने एमसीक्यू भी किया होगा. फाइंड आउट द राइज इन टेम्परेचर इन दिस केस. ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यही तुम्हारा हुआ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव. हमें जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करना है तो हमें प्योरली कंजर्वेटिव के हिसाब से जाना है. किसी ने पूछा कंजर्वेटिव का मतलब क्या? इट कम्स अंडर रियल फोर्स जिसको सोर्स ऑफ ओरिजिन है. एक बात तो वो होनी चाहिए. दूसरी, एनर्जी स्टोर. तीसरा, डू दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ? यस. ग्रेविटेशनल फोर्स प्योरली अट्रैक्टिव. इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? कैन आई erase this? Yes. Sir, energy should be stored, no? Yes, energy can be stored. Conservative force. And it is stored always in form of potential. तभी जाके देखा ना स्टूडेंट्स, gravitational potential energy, magnetic potential energy, electrostatic potential energy. पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग. तभी जाके तुमने छोटे क्लासेस में जब 8वीं 9वीं में होंगे तभी टीचर ने डिस्टिंग्विश करके बताया होगा, बच्चे लोग डिस्टिंग्विश करो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तभी तुम लोग को बोला गया पोटेंशियल एनर्जी अकर्स इन सेवरल फॉर्म बट काइनेटिक एनर्जी अकर्स इन ओनली वन फॉर्म. तो यहाँ पे तुम्हें पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी कैन अकर इन सेवरल फॉर्म. अगर मैं मैकेनिक्स चैप्टर्स पढ़ता हूँ तो वहां पे आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, वो मैकेनिक्स में आ गया. अगर वही मैं इलेक्ट्रिसिटी में जाता हूँ तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. वही मैं मैग्नेटिज्म में चला जाऊंगा तो मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया. तो हर एक में पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट. अगर वो मैं पानी के बारे में बात करूँ तो हाइड्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगा. अगर मैं टेम्परेचर डिपेंडेंस के ऊपर बात करूँ तो थर्मो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया जाएगा. Sir, what is your name? Pardon? Sir, what is your name? Why, what happened? Sir, like this. Okay. No, you can call me DAVE. I'm David sir, okay? Sir भी नहीं बोलोगे तो it's fine. It's just David, DAVE, Ajit David. Okay, स्टूडेंट, अभी आगे बढ़ते हैं. देखो, अभी हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो हम लोग ने पता चला कि ग्रेविटेशनल फोर्स किस में आता है, किस कैटेगरी में आता है. अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसमें से 2 पॉइंट हम लोग ने क्लियर किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके ऊपर डिपेंड होगा. तो ग्रेविटेशनल फोर्स विल सर्टेनली डिपेंड ऑन टू व्हाट? ऑफ कोर्स डिपेंड्स ऑन द मास. ग्रेविटेशनल फोर्स is directly proportional to the product of the mass. ये एक ध्यान में रखना. दूसरा, gravitational force is what? Inversely proportional to square of the distance between the line joining the center of the two masses. यानी अगर मैं कोई भी 2 masses दिया ना स्टूडेंट्स, if I give you 2 masses, m1 and m2, agree, and this is the line joining them. ये इसका center of mass, ये इसका center of mass, and this is the distance. हाँ, agree. तो अगर किसी ने पूछा what is Newton's law of gravitation, so I'm trying to give you a mathematical relation for Newton's law of gravitation. Newton's law of gravitation. और ये भी ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है ना, ग्रेविटेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना हो ना, तो तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड का एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाना. जिस स्टूडेंट्स ने एटॉमिक स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाया होगा, certainly will be able to click these things much more better. So now when I speak about Newton's law of gravitation, students, the Newton's law of gravitation है क्या students? ये ध्यान में रखना. Every particle of matter, please I'm speaking very slowly now. Every particle of matter attracts every other particle of matter. तो तुरंत स्टूडेंट बोलेगा सर उसका मतलब ये हुआ कि m1 m2 को अट्रैक्ट करता है, m2 m1 को भी अट्रैक्ट करेगा. क्यों नहीं? तो हमारा फोर्स से दोनों तरफ देखा एडवांस है. अगर सपोज मैं इसी के 2 डायग्राम बना दूं,
ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, ये है M1, ये है M2, यहाँ पे भी M1। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हम करेंगे वेरी क्लियरली, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम फॉर्मूला में कौन सा मास पकड़े, क्या पकड़े टू गेट इट फर्दर। एंड दो स्टूडेंट्स हु अंडरस्टैंड दिस पार्ट प्रॉपर्ली, उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी सही जाता है, तभी जाके इसके बाद में तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पकड़ते हैं, क्योंकि वो भी रियल फोर्स में आता है। सो नाउ अगर सपोज मैं दो दो पार्ट आई एम ट्राइंग टू कंसीडर, ध्यान से सुनना। ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी सब पहले केस में हम ये लेते हैं, force is exerted, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, force is exerted on 2 by 1, force is exerted on 2 by 1। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने ये लिखा है 2 by 1, तो 2 क्या है और 1 क्या है? तो तुरंत बोलेगा सर आपने बोला है कि ग्रेविटेशनल फोर्स में ओरिजिन और सोर्स होना जरूरी है, तभी जाके तो इसको हम रियल फोर्स में डाल दिया ना। तो फोर्स इज एक्सर्टेड 2 by 1, तो सर 1 तो सोर्स हो गया। ओरिजिन कहाँ से हो रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सेकंड बॉडी। तो वो सेकंड बॉडी क्या होगा जिसपे इफेक्ट हो रहा है। यानी स्टूडेंट्स ये रीड करना शुरू कर दो कि अगर कहाँ पे लिखा फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2 by 1, इफ आई से फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 2 by 1, तो 2 इज व्हाट एंड 1 इज व्हाट? 2 जिसपे इफेक्ट हो रहा है, 1 जो है सोर्स। यहीं पे अगर सपोज मैंने इफ आई से फोर्स इज एक्सर्टेड 1 2, मैंने ऐसे लिखा, तो उसका मतलब क्या है? फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 1 by 2, फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 1 by 2, तो 2 क्या बन गया मेरा? सोर्स, और 1 क्या बन गया मेरा? इफेक्ट। क्या ये क्लियर हुआ? तो Yes, sir. क्वेश्चन मतलब सर आप दोनों तरफ क्यों लिख रहे हो, ऐसे क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भाई मैंने दो एरर्स बताए यहाँ पे। मैंने बोला क्या? एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल ऑफ मैटर, तो ये तो ऐसे ही आएगा। लेकिन ये जो फोर्स है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। एग्रीड? तो यहाँ पे फोर्स कौन फोर्स की वजह से क्या होगा? सर 2 पे इफेक्ट हो रहा है, ध्यान से सुनना, 2 पे इफेक्ट हो रहा है, तो ये 2 वाला 1 की तरफ जाएगा, यानी तुम्हारा फोर्स का एरो ये होगा। एवरीबॉडी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेक्टर पार्ट ऑफ इट। अभी मैं वेक्टर्स में जा रहा हूँ। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2 by 1 का ये ब्लैक एरो है। अभी देखो ये आर क्या मतलब क्या है? पोजीशन, डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। लेकिन पोजीशन यहाँ पे कौन बताता है? अगर सपोज 2 पे इफेक्ट हो रहा है 1 की वजह से, 2 पे इफेक्ट हो रहा है 1 की वजह से, तो भाई तुम पूछोगे किसको? तुम 2 को पूछोगे 1 कहाँ पे है, यानी जिस पे इफेक्ट हो रहा है उसको पूछोगे कि सोर्स कहाँ पे है, या सोर्स को पूछोगे इफेक्ट कहाँ पे? Sir, source को पूछिए. सिंपल है। अगर सपोज इफ आई एम अट्रैक्टिंग समथिंग, देन यू विल आस्क मी अरे किसको अट्रैक्ट कर रहा है? आई विल शो इट इन दिस वे। तो मेरा जो हाथ लंबा दिखाई दे रहा है वो क्या होगा? वो तुम्हारा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो देखो डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर किस तरफ जा रहा है? ये हुआ तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर। यानी पोजीशन कौन दिखाता है? पोजीशन इज शोन बाय 1 वेयर इज 2, यानी यहाँ पे 1 इज द सोर्स एंड 2 जिस पे इफेक्ट हो रहा है। यानी पोजीशन हमेशा स्टूडेंट्स कौन दिखाता है? सोर्स दिखाता है। अभी नाउ इफ यू केयरफुली लुक इनटू बोथ ऑफ देम, कैन आई से बोथ ऑफ देम आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन? आर बोथ ऑफ देम इन ऑपोजिट Yes, डायरेक्शन? sir. एग्रीड? अभी सपोज मैं इसका एक जनरल फॉर्मूला में डाल देता हूं, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स माइट बी नोइंग इट आल्सो बिकॉज़ समबडी सेड द लॉ आल्सो, that every particle of matter attracts every other particle of matter by a force which is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance। अगर मैं ये proportional सिंपल स्टूडेंट्स निकाल देता हूँ तो ये मुझे मैम बाहर इसको. आता है यस, जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको बोलेंगे m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये किस में हुआ? ये किस में हुआ? ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड में हो गया, और ये आंसर तुम्हारा न्यूटन में आएगा। आई कैन कंसीडर न्यूटन। ऑफ कोर्स आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स आई कैन राइट ऑन इन किलोग्राम, फोर्स कैन बी कन्वर्टेड टू न्यूटन। बता दिया ना मैंने, 1 किलोग्राम फोर्स कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाउ मच? 9.8 न्यूटन। इसलिए तो बताया मैंने कि ये न्यूटन में तुम लिख सकते हो। एंड 1 ग्राम फोर्स किसमें होगा? 1000 वी कंसीडर 989। एग्रीड? ये तुम्हारा स्केलर फॉर्म में हुआ। लेकिन करेक्ट रिलेशन क्या है? अगर मैंने पूछा, किसी ने पूछा व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन स्केलर फॉर्म? minus g m1 m2 upon r square students, this is in scalar form। अभी ध्यान से सुनना, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं
सर स्केलर का मतलब तो डायरेक्शन नहीं आना चाहिए यार, नेगेटिव साइन कहाँ से आया है आपका? स्केलर का मतलब फिजिकल क्वांटिटी कंप्लीट डिस्टर्ब मैच, यानी हमें 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 एक नंबर यूनिट चाहिए हो, तो पहले वाले में मिल रहा है ना सर, जी की वैल्यू डाल दो, m1 m2 डाल दो, r स्क्वायर डाल दो, आंसर आपने न्यूटन में आ दिया। लेकिन करेक्ट रिलेशन इन स्केलर फॉर्म अगर चाहिए ना, ये तो सिर्फ सॉल्विंग पर्पस के लिए स्टूडेंट्स। जब भी तुम इसके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड में, तो सिर्फ पॉजिटिव में लेना है। अगर किसी ने पूछा कैन यू गिव मी द करेक्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, आई रिपीट, correct mathematical formula for gravitational force in scalar form, तो please you can see with negative sign. Negative sign ये बताता है gravitational force is a bound force. कौन सा force है? Gravitational force is a bound force. It is bound by the earth. अर्थ के बाइंडिंग के हिसाब से, और ये हमेशा जो कुछ मैं बात कर रहा हूँ अर्थ के रिलेटेड बात हो रहा है स्टूडेंट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ के बारे में, सिंपली ग्रेविटी के बारे में बात हो रहा है। दिस इज व्हाट इट कंसीडर बाउंड फोर्स। तभी जाके नेगेटिव साइन में दे दिया। लेकिन अभी इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखूंगा? तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे सोर्स और इफेक्ट का आ गया खेल। तो देखो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ध्यान से देखना। एनीबॉडी कैन टेल मी इन वेक्टर फॉर्म फॉर्मूला फॉर फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 इन वेक्टर फॉर्म, तो बता सकते हैं? Sir, F21 equal to G M1 M2 upon R12 square. ओके, वेक्टर फॉर्म आइडिया देखना, फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 इज इक्वल टू जी, सही बोला तुमने, m1 m2। ध्यान से सुनना अभी, अगर मैंने नीचे लिखा r स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा r12 कैप विद नेगेटिव साइन। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। समझ में आ रहा है? अभी बताओ मुझे, नीचे क्या लिखा मैंने, r स्क्वायर, ये क्या है? r कैप। r कैप का मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? Sir, unit vector along यूनिट वेक्टर R1. क्या दिखाता है? यूनिट वेक्टर क्या दिखाता है? डायरेक्शन। Direction डायरेक्शन। इज द डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द पोजीशन वेक्टर, ऑपोजिट टू इट? opposite. एंड पोजीशन वेक्टर इज 1 2, फोर्स इज 2 1। क्या ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Sir. एवरीवन, क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी चलो Yes, दूसरा वाला sir. लिखता हूँ, दूसरा वाला लिखता हूँ। फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 माइनस जी m1 m2 अपॉन r क्यूब, लिखा मैंने नीचे r क्यूब लिखा। क्या ये सही है गलत है? सर सही है। श्योर? हु सेड दिस सही है? एक मिनट नाम पढ़ने दो। दीप? नहीं, उसने नाम निकाल दिया, नॉटी बॉय। यस, क्या ये सही है गलत है? Sir, सही है. ऑफ कोर्स सही है। कैसे सही है? ये देखो ना, ये यूनिट वेक्टर लिया। स्टूडेंट्स, व्हाट इज यूनिट वेक्टर? सो ये यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ R cap upon magnitude of. I get it. Unit vector is the ratio of vector to its magnitude आ गया। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म है, तो देखो इसी फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ, माइनस जी m1 m2 अपॉन r क्यूब। देखो ये वेक्टर को मैं कैसे लिख रहा हूँ, इंटू r, ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? आ गया तुम्हारा r स्क्वायर। Yes, that's ext. Is this clear, students? Yes. Okay. So if I consider this, I can consider this r and r cube. So this is r cap. This is clear. So this is also be considered as in vector form, be consider. यानी वेक्टर फॉर्म दो फॉर्म में तुम लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बता रहा है? स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि वो बाउंड फोर्स है, इट्स बाइंड फोर्स भी कंसिडर। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है? ये बताता है कि पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ sir. Likewise, can you give an answer for this also? Why not? तो इसका क्या होगा? Force exerted on 1/2. Yes, anybody can tell me what's the answer for this? माइनस जी m1 m2 r कैप
2 1 upon r square. Absolutely. The force equal to 1 by 2 minus G M1 M2 upon what exactly we consider? अगर मैंने R3 लिखा तो R21 बार. Agreed. क्यों बार आते हैं? यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में आएगा. यूनिट वेक्टर आता है नीचे R स्क्वायर आएगा. नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन. ये दिखा रहा है फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन 1 by 2 तो फोर्स इस तरफ जाएगा. ये तुम्हारा फोर्स है. पोजीशन कौन दिखा रहा है? पोजीशन कौन दिखाएगा? सब पोजीशन सोर्स दिखाएगा. तो पोजीशन इज शोन बाय whom? M2. Source. That is 2 and 1. Is that clear? Yes, sir. Can I erase the students? No, sir. Yes, students, can I erase it? Sir, 1 minute. Okay. Sir, done. Okay. Sir, 1 minute. Yeah. Okay. Okay. Students, what does this G stands for? Can you tell me what is G? Gravitational constant. Gravitational constant. Why is it called as a constant? What's the reason for it to be constant? Reason क्या? Students? Sir, it will balance. It will what? Sir, it will balance both sides. Balance both side. Yes. Anybody else? Yes. Norman. Answer. Norman. Bolo. Sir, Why do we call as a constant? Norman, why should I call it constant? Sir, that force due to gravity and M1, M2 upon R square is not equal. Means always will be not equal. Not equal. Why? Sir, always will be. Students, see, somebody had posted it. Why doesn't he unmute? I don't understand that. Parth unmute करना चाहिए ना. ये constant इसलिए है constant throughout the universe इसलिए students अब भी मैंने इसके पहले बोला कि ये जो force of attraction है students independent of nature, size, shape, mass or the medium between the two bodies. ध्यान से सुनना. कोई भी साइज ले लो, कोई भी शेप ले लो, कोई भी मास ले लो दो ऑब्जेक्ट के बीच में, और कोई भी मीडियम के अंदर रख दो. ये दोनों को पानी के अंदर रखो, हवा में रखो, वैक्यूम में रखो, आउटर स्पेस में लेके जाओ, अर्थ के कोर में लेके जाओ, फिर भी वहां पे अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट्स. It's all the time remains constant. G is universal gravitational constant to control. It's all the time remains constant. It's independent. And answer सुनना. अगर किसी ने पूछा G is called as universal gravitational constant. Why? Because we say that it's independent. It does not depend on the nature, size, shape.
or the material medium between the two bodies we consider. That's why it's all the time remains constant. And the value of G, students, is 6.67 into 10 raised to minus 11 Newton मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। और देखो जी को अगर मैं सब्जेक्ट बना दूं स्टूडेंट ध्यान से देखना, देखो यही जी को मैं सब्जेक्ट बना दूं तो मैं देखो मेरा फोर्स ऊपर आ जाएगा, डिस्टेंस ऊपर आ जाएगा, दोनों मास नीचे आ जाएंगे, तो यूनिट तो इजी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर इनवर्स। और ये जो कंसेप्ट आता है ना स्टूडेंट्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट का, अगर अगर तुम चाहो तो इसका इसका मैथमेटिकल वे अप्रोच या उसका कैसे आएगा, सिंपल एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ अप्रोच है स्टूडेंट्स ये भी। और वो रोटेशनल डायनामिक्स के हिसाब से तुम जा सकते हो बिटवीन टू मटेरियल बॉडीज। इसका शॉर्ट डेरिवेशन अगर तुम एचसी वर्मा में देखोगे तो उसके अंदर 110% होगा। दो बॉडीज दी होंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया होगा, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट दिया होगा, एंड वी कैन गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो वन कैन गेट अ मैथमेटिकल रिलेशन फॉर दिस, लेकिन ये है क्या, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर एंड साइज एंड शेप ऑफ द टू बॉडीज। तभी जाके इसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या ये क्लियर हुआ? Yes, sir. Okay. You should know the dimensions also for this, huh, students? One should know the dimensions of this. Doesn't matter, Parth. It's fine. Okay, friends. Now, suppose if I happen to give you, I have a body of mass m, agreed, and there are other masses which are brought within its region. Okay. So, students, can you find out the gravitational force? Gravitational force of a body with respect to m1 we consider, okay, when this particular is considered to be at four corners of a regular square. Again, suppose if I happen to go for a regular square, students, all sides are equal. This is mass m1, mass m2, mass m3, mass m4, students. Okay, each of mass m. I want to, students, get the resultant gravitational force on m1 due to system of masses. Can anybody give me an answer for this? Resultant gravitational force on m1 due to system of masses we consider. The side of the square is A. क्या ये क्वेश्चन क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes. 4 point mass मैंने दिया है m1, m2, m3, m4. आप place at four corners of a square. Side is A. I wanted to find the resultant gravitational force on m1 due to system of masses we consider. Can you solve and get the answer for this?
Students, can you hear me? Yes, sir. Students, sir. did you get the screen blank? No, sir, your video is now on. Pardon? It's visible. Acha, nahi, the screen didn't get blank na in between. Yes, sir. It got blank. It got Yeah, sir, it had got blank. Somewhere the network issue was there. Okay, can anybody give me the answer for this? Sir, Answer? sir, G1 into bracket 2m2 plus 2m4 plus m3 upon 2a square. Each is of mass m. Each of mass m, students. Sir, 5gm square upon 2a square. Okay. Who's this? Who's answered this? Sir, the Okay, Deep, chalo, okay, can you tell me how did you solve it? कैसे किया? बताओ. सर फर्स्ट मैंने वो m1 और m2 के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड किया. Okay, wait a minute. Please, he's trying to put forward it. Okay, let me give you. He's trying to go for force between m1 and m2. तो उसका डायरेक्शन किस तरफ जाएगा? बाहर जाएगा या towards h1? Force exerted on m1 by m4. सर डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट होगा. Okay, so if force exerted on 1 by ये होगा force exerted on 1 by 4. हाँ, तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ होगा? सर टुवर्ड्स द थर्ड ग्रेविटेशनल. हाँ, so that means it's diagonal with an angle of 45 degree. यस सर. तो ये क्या होगा? F cos theta है ना? कंपोनेंट. हाँ सर. ये क्या होगा? F14 cos 45. दोनों का मास सेम है. हाँ स्टूडेंट्स, Yes. दोनों का मास सेम है. दोनों का डिस्टेंस भी सेम है स्टूडेंट्स. तो ये दोनों फोर्स को मैं ऐड कर दूं तो क्या ये बन जाएगा? कैन आई से these two forces will become 2F cos 45. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? दीप, are you there? दीप, यस सर. क्या किया तूने? 2F 45 किया है? हाँ, नो सर. क्यों? देखना, इसका कंपोनेंट इफ आई हैव टू कंसीडर, इसकी वजह से ये होगा. इसका कंपोनेंट नहीं होगा तो दोनों ऐड होगा. अगर तू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी जा रहा है तो तुम्हारा क्या होगा? अंडर रूट. ध्यान से रखना ना, ये पहला वाला स्क्वायर, दूसरा वाला स्क्वायर. एग्रीड? हाँ सर. तो और 90 तो आ जाएगा, तो दूसरा तो 0 हो जाएगा, है ना? यस सर. व्हाट एग्जैक्टली हम करेंगे? √2 टाइम्स f आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर. हाँ. यहाँ पे भी तो आ रहा है ना. देखना, 2f व्हाट इज cos of 45 1 by √2. रैशनलाइज करो तो क्या आया? √2f. यहाँ पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर. Now what is force? Force is same. इन दोनों के बीच में इसका magnitude क्या है स्टूडेंट्स? What is the magnitude of this? Please everybody be with me. What is the magnitude of this? The magnitude of this will be equal to g. Answer सुनना students. m1 m2. What are the two masses? Masses are same. Can I say m square यस सर. upon r square? Agreed? Yes, sir. इसका भी force will be the same. दोनों का force same है. So can I say my answer for this will be √2 times force क्या है? g m square upon a square. क्या ये clear हुआ? Force between force on 1 due to 4 and 2. यस सर. Yes. But now I want to know force exerted on 1 by 3. That is in this direction. तो क्या होगा? I asked you to find out resultant force on M1 due to the system of the masses. सिस्टम में क्या था? ये 3 मासेस के हिसाब से 2 के लिए तो तुम्हें आंसर मिल गया. तीसरा किसकी तरफ जा रहा है? सर डायगोनल जा रहा है ना ये स्टूडेंट्स. इज इट गोइंग अलोंग द डायगोनल? यस सर. Yes. देखो, Yes, 1 और 3 में से कौन किसको अट्रैक्ट कर रहा है स्टूडेंट्स? मैंने क्या बोला? फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1 by 3. तो 3 क्या बन गया? Source. 1 क्या बन गया? इफेक्ट.
तो फोर्स exerted on 1/3, क्या इसका आंसर दे सकते हो स्टूडेंट्स? Sir, gm square upon 2a square. Of course, gm square upon what is diagonal? Diagonal is equal to side root 2. तो a root 2 the whole square. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सर ये नहीं समझ। इधर आंसर देखो, ये देखो ना, ये m1 यहाँ पे है, ये m2 यहाँ पे, सॉरी m3 यहाँ पे, और ये क्या था? साइड ऑफ द स्क्वायर इज a. स्टूडेंट्स व्हाट इज डायगोनल? डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है ए हमेशा? रूट 2 हाँ, तो a root 2 हो जाएगा। अभी मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? g m1 m2 m3 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन Yes. दो सब सेम है ना, तो m स्क्वायर ही आएगा ना ऊपर, यस। एंड डिस्टेंस स्क्वायर, तो a root 2 द होल स्क्वायर आ गया। क्या ये क्लियर हुआ? हाँ सर। So now can I say force exerted on 1/3 will be equal to g m square upon twice a square. यस सर। Now can you say what about these two forces? ये जो फोर्स मिला इन दोनों की वजह से, ये फोर्स मिला इन ऐड हो जाएगा। हाँ, क्यों ऐड हो जाएगा? क्योंकि अभी इन दोनों का डायरेक्शन भी तो सेम है, टू वेक्टर्स हेडेड इन द सेम डायरेक्शन। एग्रीड? यस सर। So now if I happen to go for it, तो क्या आंसर होगा? सर ये होगा √2 times gm square upon a square plus gm square upon 2a square. Agreed? Can I remove gm square upon a square outside? Yes. What's my answer? √2 plus 1/2. That becomes your answer. Net force. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? हाँ सर। Yes, sir. यही अगर मैंने ऑप्शन दिया होता तो भाई ये तो मैग्नीट्यूड है, अगर मैंने दिया होता वैल्यूज देते हुए तो वैल्यूज डाल के तुम आंसर निकाल सकते हो। यही चीज अगर मैंने वेक्टर्स में दिया होता तो कैसे करते? तुम सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस के हिसाब से जाते। ये क्या था? प्लस साइन, ये क्या था? माइनस है ना? हाँ सर। Are you getting it? And this is acting in the same direction. You can get your answer accordingly. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? Yes, sir. How many people have got this answer Yes, correct? sir. How many people have got this answer correct? Raise your hands. Those who have got it correct. The strength is 36. Anybody is getting it correct? gm square upon a square into bracket √2 plus half. अगर सपोज तुम्हें डेसिमल्स में आंसर मिलता होगा तो √2 का वैल्यू क्या है? 1.414. हाफ का मतलब क्या है? 0.5. So what's the answer? 1.9. How many people are getting it, students? None? Harsh, Sayed, Divesh, Aranshi, Ayush, Aditya, Yes. Bhargav, come on. नहीं मिला क्या दक्ष? जय शर्मा, नॉमन, निधि, पार्थ, प्राची, Shreyash, Siddham, Shaili, Rudra, what are you doing? Okay, copy down the solution, students, please.
स्टूडेंट्स कैन यू हियर मी? Yes, sir. क्या वापस प्रॉब्लम हो गया था? हाँ, sir. ये वाईफाई का प्रॉब्लम हो रहा है। Have you finished, students? Can I erase it? Sir, sir, from where you have written that root 2 gm square upon a square? This part. Okay. Got it? Yes, sir. Can I erase it, students? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, students, now please start listening. Students, if in case if I happen to give you one is mass small m, okay, other of mass 2m, okay. Body of mass small m and 2m, okay, is mass 2m given to you. Now my question to you, students, where are you going to place a mass m by 2? Okay, where are you going to position the mass m by 2 such that the resultant gravitational field or the gravitational force, sorry, the resultant gravitational force due to m and 2m on m by 2 should be equal to 0. My question is, where will m by 2 be placed? So that the resultant force due to m and 2m on m by 2 is equal to 0. क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? हाँ स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब क्या मालूम है स्टूडेंट्स? इसको इसको कैसे समझना मालूम है? ये सोचो ना स्टूडेंट्स, हेलो, मैंने एक सन दे दिया, चलो मेरे से सन तो ह्यूज मास है, ये दे दिया मैंने अर्थ, एम है, अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड, मास ऑफ द मून अर्थ से कम होगा, तो क्या पोजीशन पे हम मून को रखे सो दैट द रिजल्टेंट ग्रेविटी, क्योंकि अगर मून यहाँ पे आया तो वो अर्थ के फील्ड, अर्थ का फोर्स भी लगेगा, सन का भी फोर्स लगेगा ना, हाँ कि ना स्टूडेंट्स? अगर सपोज हाँ। इसका मास हैवियर है तो मून तो इसके इस तरफ जाएगा, Yes, sir. लेकिन अर्थ उसको जाने नहीं दे रहा है, यानी कोई तो फैक्टर होगा, कोई तो डिस्टेंस होगा जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते तुम? यानी जहां पे अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और सन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो दोनों कैंसल आउट होके रिजल्टेंट फोर्स क्या बन जाएगा? समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग विल बी 0। मैंने वो क्वेश्चन पूछा है।
अभी समझ में आया ये क्वेश्चन समझ में आया क्या है? Yes. एग्री? Yes, sir. I try to get the answer. Yes. Yes, anybody? Distance. X into X. Jay's got the answer. Anybody else? So 1 minute. Sir, we are doing. Okay, go ahead. Yes, students, getting it? So at a distance 0.4 from the mass m. Hmm. Did I give you the distance between M and 2M? Oh, sir. Sorry. Hello. Distance I didn't give it to you. Let the distance be considered to be as X. I can consider as R. There's a 0.4 times r. Yes. See one thing. I want to find out the distance at which. तो देखो यहाँ पे अगर मेरे को suppose the ball this is at m/2 ये distance पूरा r ले लेता हूँ अभी options अभी तुम होंगे ना students so they might give you from m or to m कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पे मैंने दिया नहीं है तो इसको तुम x पकड़ लो ना ये distance x पकड़ लो तो ये कितना हो जाएगा r minus x क्या इतना क्लियर हुआ स्टूडेंट्स Yes, sir. मैंने पूछा रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन m/2 ड्यू टू बोथ ऑफ देम तो क्या करोगे सर फोर्स एक्सर्टेड ऑन सपोज एक तो मैं 1 2 और 3 लेता हूँ तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 is exactly equal to force exerted on 3/2 इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा वेक्टर्स में लिखूंगा तो ऐसा होगा इसको अगर मैं यहाँ पे ले लेता तो कहना से फोर्स एक्सर्टेड ऑन 2/1 प्लस फोर्स एक्सर्टेड ऑन 3/2 रिजल्टेंट क्या बन गया 0 आया कि नहीं आया एग्रीड यानी यहाँ पे इस पे जो फोर्स लग रहा है ड्यू टू दिस बॉडी
and force due to this acting on this point mass or this body of mass m by 2. Resultant should be 0. So they should be equal in magnitude, but they should be opposite in direction. Let us go for equal in magnitude. Let us go for equal in magnitude we consider. तो देखो दोनों का magnitude same करो. तो force exerted on 1 by 2 तो क्या होगा? Force exerted on 2 by 1. ये क्या होगा? So G m by 2 upon x square. Agree students? क्या ये clear हो रहा है? हाँ सर. इस तरफ Sir, किसका पूरा what was just last point? Pardon? Sir, could you just repeat that last part said now? I said it, force exerted on 2 by 1. So that is equal in magnitude and opposite in direction. तो मैंने इसका फॉर्मूला लिखा G m1 m2 अपन r square. m1 ये है, m2 ये है, डिस्टेंस दोनों के बीच में x square आ गया. Agreed? Yes. Same thing I'll consider for 2 and 3. We consider in this case 3 and 2. So G m1 m2 upon r minus x so whole square. Is this clear? Yes sir. Now, if I happen to go for मुझे x की value चाहिए, तो what I'll do? I'll cancel g. This m square and m square also will get cancelled. This 2 and 2 will get cancelled together. So 1 upon 2x square will be 1 upon r minus x the whole square. Agreed, students? Yes, sir. हाँ sir. x square upon r minus x the whole square will be equal to 1 by 2. So when I say x upon r minus x is equal to 1 by root 2. क्या ये clear हुआ यहाँ तक? Yes, sir. Now, if I try to resolve it, what exactly be? Root 2x is equal to r minus x. Take x on the other side. So root 2 plus 1 into x is equal to r. What's the value of x? क्या ये clear हुआ? Yes, sir. Jai, who got the answer earlier? Jai, did you get it? Jai, are you there? Sir. Even I got the same answer. Who got the same answer? Sami Bhargav. Bhargav. Jai, I'm coming back to you, Jai. What did you get the answer? Why? How could you get that answer? मुझे बता. कैसे मिला वो reason क्या है? क्या किया तूने? सर वो x और 2x वाला जो मैंने पहले भेजा था वो वाला. हाँ. सर वो मैंने सेंटर ऑफ मास का देख लिया था. क्यों सेंटर ऑफ मास कितनी देगा? जरूरी नहीं कि सेंटर ऑफ मास के हिसाब से होगा, डिस्टेंस के हिसाब से है ना. पुल ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द टू मासेस, तब जाके तो रिजल्टेंट फोर्स. अब यही क्वेश्चन में फील्ड के हिसाब से दे सकता हूँ स्टूडेंट्स को मैं, क्योंकि देखो फोर्स और फील्ड बोथ ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. हैव यू हर्ड अबाउट द वर्ड सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस? हाँ स्टूडेंट्स, हैव यू हर्ड अबाउट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? Yes, sir. है ना, सुनना तो है ना. तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन फोर्सेस में भी अप्लाई हो रहा था. इसकी जो अगला प्रॉब्लम था वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था. एक के ऊपर 3 ने अटैक करके रख दिया तो वो बेचारा रिजल्टेंट फोर्स क्या आ गया. सेम थिंग यहाँ पे हम लोग ने रिजल्टेंट फाइंड आउट किया. वो फोर्सेस में भी आता है, फील्ड्स में भी आता है. अगर सपोज मैंने अगर आर का डिस्टेंस मैंने दिया होता, आर का डिस्टेंस अगर सपोज मैंने 1 दिया होता, तो मेरा आंसर 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 आता. बट द कंसेप्ट यू शुड गेट इट कि पहले वाला x स्क्वायर था, ये होगा ये, इसमें ये 2 कैंसिल हो जाएगा, m by 2 x स्क्वायर आ गया. मुझे x की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर रूट, ये आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. रूट 2 प्लस 1 ये कितना है? 1.414 प्लस 1 यानी 2.414. तो तुम्हारा x की वैल्यू क्या है? r अपॉन 2.414. अगर r की वैल्यू मैंने 2.414 दिया होता तो मेरा आंसर 1 आ जाता. क्या ये क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू ऑल? Yes, sir. ओके, कैन आई इरेज दिस? Yes sir. ओके.
I want to find out resultant gravitational force on 1 kilogram mass due to system of other masses. Question clear, students? 3 masses, 1 kilogram, 2 kilogram, 3 kilogram are placed at corners of a equilateral triangle of side 1 meter. 1 kilogram mass is placed at the centroid. I want to find a resultant force on 1 kilogram mass. क्या ये clear हुआ students आपको? Yes. Okay, try to get it. Yes, students, anybody? G down. Deep is giving answers all instant. Deep कैसे है बता अभी? जल्दी. सर सेम वो स्क्वायर वाला क्या ना वैसे ही क्या बटे. हाँ तो बता अभी. इसके बीच में पहले निकाला तूने फोर्स. सर 1 और 1 के बीच में निकाला और उसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ हो. Force exerted on 1 by 1. So उसका डायरेक्शन इस तरफ गया. हाँ सर. हाँ तो ये सपोज मैं अगर 1 लूँ, ये 2 लूँ और ये 3 लूँ और इसको मैं 4 लेता हूँ तो फोर्स exerted on 4 by 1. Agreed? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? G m1 m2 upon what is the distance? Sir 2/3 times of the median. Absolutely correct. ये मीडियन होता है इक्विलैटरल तो 2:1 होगा. ये 2:1 होगा. 2/3 पूरे की होगा. 2:1 इसके लिए होगा. ये पूरा 3 हो जाएगा. एग्री? हाँ कि ना? Yes sir. तो यहाँ पे तुम्हारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा. ये तेरा पहला वाला मिला. चलो नाउ सर वो 1 और 3 के बीच में निकाला और 1 और 2 के बीच में निकाला. तो इनका फोर्स एक्सर्टेड ऑन 1/2 तो इधर ये डायरेक्शन में जाएगा. हाँ सर. और इसका इस डायरेक्शन में जाएगा. हाँ सर और उन दोनों का रिजल्टेंट वो डाउनवर्ड होगा. Okay, so now what is the answer for this? So you took the component. Yes sir. Okay, तो ये क्या होगा? F cos 60. इसके लिए फोर्स exerted on 4/2. इसके लिए क्या होगा? फोर्स exerted on 4/3 cos 60. Agreed? Yes sir. Now please दोनों का मास सेपरेट है इसलिए दोनों को ऐड करना पड़ेगा. ये ध्यान में रखना. cos of 60 क्या होगा? हाफ तो बाहर निकाल दूंगा. ब्रैकेट में क्या होगा? G. इसका m1 m2 क्या होगा? 1 into 2 upon what is the distance? ये डिस्टेंस कितना होगा? Sir 2. 2 ही होगा. ये भी 2 होगा.
this becomes 2 square plus इसके लिए क्या होगा g 1 into 3 by 2 square. Students, are you all getting all of you all? Yes. Okay, तो अगर इसको तुम सॉल्व करो तो 1/4 बाहर आ जाएगा, तो 1/4 बाहर आ जाएगा तो व्हाट एग्जैक्टली विल कंसीडर 1/8 होगा. ये कितना होगा 2g plus 3g कितना हो जाएगा 5g. एग्रीड. Yes, sir. ये कितना है g/4. Now how are these two forces, are they in the same direction or opposite direction? Opposite. इनका रिजल्टेंट क्या होगा? Of course, this is larger in magnitude, so can I say 5g by 8 minus g by 4, LCM is 8. 4 2s are 8. So 5g minus 2g, यानी 3g by 8. Answer 3g by 8 है. Downwards. क्या है? 12g कहाँ से मिला? Sorry, दीप. सर वो मैंने वो कंपोनेंट लेने में गलती कर दी. क्यों ऐसे इतना फास्ट क्यों करने में बैठा तू? Okay, but is this clear? Component अभी clear है तुम लोगों को students? Is it clear to everybody, students? What am I trying to do? Yes, sir. Okay. Can I erase this? Sir, one. Okay. Sir, Yes. Can I erase it? sir, one. Verify all only, my dear. Done, sir. Okay. The next concept we consider is your gravitational field intensity. Can anybody tell me what is gravitational field intensity, students? What does it mean? Gravitational field intensity, students. Anyone? Gravitational field intensity or gravitational field strength. Students, gravity, yes. Sir, Everyone? gravity around the object there is a gravitational force exerted by it, and that field is called gravitational field. And the That's- strength. ओके यानी तुम ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर बोलोगे तो कैसे बोलोगे मालूम है? तुम्हें सबसे पहले सोर्स के बारे में देखना है कि सोर्स ये है. अगर सपोज कोई मास
उसके रीजन में आ गया तो उसको अट्रैक्ट करेगा, अगर लेकिन ये सोर्स हेवियर है तो इट हैज कम विद इन इट्स विसिनिटी, तो यहाँ पे तेरा फोर्स क्रिएट होगा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स, ई मैं बताता हूँ, ई आई कंसिडर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्टूडेंट्स. Gravitational field intensity is defined as gravitational force acting on a unit mass. It's acting on a unit mass within the field of a given source mass. Again, I repeat, gravitational field intensity is defined as gravitational force acting on a mass when the mass is within what? Within the field of a given source mass. क्या ये क्लियर हुआ? Yes. क्या ये क्लियर हुआ? ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर. तो कैन यू टेल मी इट्स यूनिट? इसका यूनिट बता सकते हो? क्या होगा इसका यूनिट? ऑफ कोर्स न्यूटन किलोग्राम इनवर्स. एग्रीड? Yes. न्यूटन को कैसे लिखोगे? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? हाँ, किलोग्राम इनवर्स यानी 1 किलोग्राम आएगा कि नहीं आएगा? एग्रीड? yes. किलोग्राम विल गेट कैंसिल. बचा क्या? मीटर पर Meter सेकेंड. per second. मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. That meter per second. यानी कहने से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, Yes, sir. है ना? यानी इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम होगा फिर, हाँ कि ना? Yes. Okay, we are going to learn about gravitational field intensity and then we'll see about gravitational acceleration in the next class. Is that clear, students? Yes. Okay, sir. Sir, what? Yeah. The next class, please, students, kindly revise whatever I've done it with you all.